Let's see a comparative study of matters. You know that the states of matter are solids, liquids, and gases. We all have seen water in all these three states of matter. As a solid, water exists in the form of ice, liquid water we all drink, and in the gaseous form, water exists as steam. So, in general, let's study about the different properties of matter and compare them in the different states of matter. First, let's see about the shape. In the solid shape, you all know that solids have a fixed shape. Liquids do not have a fixed shape and gases do not have a fixed shape. The gases are not able to maintain a fixed shape. Then next about the volume. Volume means the space occupied by something. So solids have a fixed volume. Even if you mold that, even if you just convert a cuboidal piece of metal into a cube like structure, then also its volume will remain the same. So solids have a fixed volume, means the total space occupied by them will be remaining the same. If we talk about liquids, liquids also have a fixed volume. Means if you pour the liquid into a test tube and say it's 10 ml, then if you pour that water into the beaker, that will also be 10 ml only. Okay, you purchase milk packets from the market. So if that pouch of milk is having 500 ml of milk, that is half a liter of milk is there, then even if you pour that into a glass or in any other container, that will remain 500 ml only. Means जो space वो occupy करेंगे, that will remain the same, means that will be having a fixed volume. उनकी volume change नहीं होगी. But that is not the case with gases. Gases को आप जितना space दे दोगे उतना पूरे space में occupy कर लेंगे. For example, अगर मेरे पास एक container है और इसमें मैंने water fill करा है. Now this water, अगर ये पानी कम है या ज़्यादा है, for example अगर इतना पानी है, it's suppose 20 ml of water, तो ये इतना space occupy करेगा. अगर 40 ml water है तो ये इतना space occupy करेगा. तो जितना water है उसके according ही उसका volume होगा, उतना वो space occupy करेगा. पर gases के साथ ऐसा नहीं है. गैसेस कितनी भी कम हो, कितना भी ज्यादा हो, वो एक कितना भी आप उनको स्पेस प्रोवाइड कर दो, पूरे स्पेस में गैसेस फिल कर देती हैं. फॉर एग्जाम्पल एलपीजी सिलेंडर की अगर हम बात करें तो गैस, बहुत सारी गैस उस एक एलपीजी सिलेंडर में फिल्ड होती है. बट अगर हम गैस का नॉब ओपन करके छोड़ दें तो पूरे घर में वो गैस फैल जाएगी. मतलब उसकी कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है. जितना आप स्पेस दे दोगे उन्हें, उतना ही वो स्प्रेड हो जाएंगी. अगर एक कंटेनर के अंदर मैंने लाइटेड एक अगरबत्ती प्लेस कर दी और इस अगरबत्ती में से जो धुआं आ रहा है, तो जितना भी बड़ा वो कंटेनर हुआ या बॉटल हुई, वो पूरी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा वो धुआं, चाहे वो धुआं कम हो या ज्यादा हो. Whatever could be the space, जितना आप उस space दे दोगे उतना space को पूरा वो occupy कर लेगा. Means gases do not have a fixed volume. आप उनको जितना space दोगे उतना space में वो fill हो जाएंगे. So that is, gases do not have a fixed volume. Now space between the particles. अगर हम interparticle spaces की बात करें तो solids में space between the particles is very very less, and the particles are having a very closely packed with each other. पार्टिकल्स एक दूसरे के बिल्कुल पास पास में हैं, उनके बीच में स्पेस बहुत कम है. एंड दैट इज व्हाई इफ वी वांट टू एंटर आवर फिंगर इनटू द बोर्ड और इनटू सम सॉलिड, देन वी वोंट बी एबल टू डू दैट वेरी इजीली, बिकॉज उनके बीच में स्पेस बहुत कम है. बट अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स में कंसिडरेबल स्पेस होता है बिटवीन देम. एंड दैट इज वाई अगर हम वाटर के अंदर सॉल्ट पुट करना चाहें
तो हम बहुत सारा सॉल्ट उसमें पुट कर पाएंगे एंड दैट विल बी अकोमोडेटेड बिटवीन द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। इसी तरह से गैसेस में भी बहुत सारा स्पेस होता है एंड दैट इज व्हाई आई कैन फ्रीली मूव माय हैंड इन एयर। दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी दैट गैसेस में भी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी लार्ज। गैसेस में ये स्पेस सबसे मैक्सिमम होता है और सॉलिड्स में सबसे मिनिमम। नेक्स्ट इज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या हुआ? कंप्रेसिबिलिटी मतलब आप फोर्स या प्रेशर अप्लाई करके अगर किसी सब्सटेंस की वॉल्यूम को कम कर सकें तो दैट इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। अगर आपने फोर्स अप्लाई किया या प्रेशर अप्लाई किया और अगर आप उसको, अगर वो पहले ज्यादा स्पेस में आ रहा था एंड नाउ इट्स ऑक्यूपाइंग लेसर स्पेस, दैट इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड्स हैव मिनिमम कंप्रेसिबिलिटी। अगर आप सॉलिड्स को कंप्रेस कर भी देंगे, उसका शेप चेंज कर देंगे, स्टिल वो जितना वॉल्यूम पहले ऑक्यूपाई कर रहा था अभी भी टोटल वॉल्यूम उतना ही ऑक्यूपाई करेगा। मींस कंप्रेसिबिलिटी इन केस ऑफ सॉलिड्स इज मिनिमल और नो कंप्रेसिबिलिटी। सिमिलरली लिक्विड्स को भी आप कंप्रेस करके कम जगह में वो आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो लिक्विड्स में भी कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती या बहुत कम कंप्रेसिबिलिटी होती है। बट गैसेस हैव अ लॉट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, क्योंकि वो बहुत सारी जगह घेरते हैं। तो अगर आप उनको प्रेशर अप्लाई करोगे, फोर्स अप्लाई करोगे, तो बहुत थोड़ी सी जगह में वो सेम गैस बहुत थोड़ी सी जगह में आ जाएगी। और उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारा एलपीजी सिलेंडर दैट इज हैविंग द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस दैट वी यूज इन आवर किचन। Apart from that, CNG, compressed natural gas. उसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर्स दैट आर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर पेशेंट्स। तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे हम गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं, उनकी वॉल्यूम को कम करके एक छोटी सी जगह पे बहुत सारी गैस फिल कर सकते हैं। एलपीजी सिलेंडर में, छोटी सी सिलेंडर में बहुत सारी गैस फिल्ड होती है। और ये गैस कैसे फिल करते हैं? गैस को कंप्रेस करके। गैस को कंप्रेस कर दिया जाता है सो दैट इट इज ऑक्यूपाइंग वेरी लिटिल वॉल्यूम, और इस प्रॉपर्टी को ही कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। मींस बाय अप्लाइंग फोर्स you can change the volume of a substance or volume of a state of matter, that is known as compressibility. Next is rigidity or fluidity. Solids are rigid. What is rigidity? Anything that tries to maintain its shape. कोई भी ऐसी चीज जो अपना शेप चेंज करना ना चाहे, मैक्सिमम कोशिश करे कि वो अपना शेप चेंज ना करे, दैट नेचर इज रिजिडिटी। सॉलिड्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। एवरी पार्टिकल ट्राइज कि हम अपना शेप चेंज ना करना पड़े। सो दैट नेचर ऑफ सॉलिड्स इज नोन एज रिजिडिटी। बट liquids and gases have fluidity. Both are known as fluids. Fluid is a common word used for gases as well as liquids because both of them can flow from one place to another. Fluidity means एक जगह से दूसरी जगह जाना. So you all know that water in the rivers flow and the gases move from one place to another. तो जो भी चीज फ्लो कर सकती है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, that property is known as fluidity. तो solids are rigid whereas liquids and gases are both fluids because they have the property of flowing. They can flow from one place to another, so they are known as to have fluidity. Next property is kinetic energy of the particles. Kinetic energy of the particles means particles कितना ज़्यादा move कर सकते हैं, कितना ज़्यादा motion show करेंगे, कितना ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह पर move करेंगे. That is known as kinetic energy. In solids, the particles have least kinetic energy. पार्टिकल्स सॉलिड स्टेट में बहुत वाइब्रेटरी मोशन शो कर सकते हैं, बस अपनी ही जगह पर खड़े होकर बस वाइब्रेट कर सकते हैं, टू एंड फ्रो मोशन कर सकते हैं। उनमें काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है और वो सबसे कम मूव कर रहे हैं।
सबसे कम मूव कर रहे हैं इसलिए क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स के बीच में वो सबसे ज्यादा है, इसलिए वो मूव नहीं कर पाते। बट अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉलिड्स, एंड gases have very high kinetic energy. Kinetic energy in gases is very high. इसलिए इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही gases exerts pressure on the walls of the container in which they are kept. आप किसी गैस को किसी कंटेनर में रख दो तो वो उसकी वॉल्स पर एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल आप खुद सोच के बताइए कि क्या है, आपके किचन में ही कहीं है। That is an example to show that gases exerts a pressure on the walls of the container. Think over it. I'll tell you the answer. अगर हम प्रेशर कुकर में पानी भर दे और जब तक पानी रहेगा the whistle is not going to blow. बट जब हम उसको हीट करते हैं तो वो वाटर गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, मीन्स इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम। जब ये स्टीम बनती है तो ये स्टीम वॉल्स पर प्रेशर क्रिएट करती है जो हमें नहीं पता चलता। बट जब ये प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, कंटिन्यूअसली पार्टिकल्स हिट कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली पार्टिकल्स ट्राई कर रहे हैं कि इस वॉल पे प्रेशर क्रिएट करें, एंड देन यू हियर द विसल ऑफ योर कुकर। ये विसल क्या शो कर रहा है? विसल ऊपर कैसे मूव करा, उस विसल को ऊपर किसने मूव करवाया? That was a force, that was the kinetic energy of the particles of the gaseous state, जिन्होंने फोर्स अप्लाई किया वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे। उसके अलावा वो विसल के ऊपर फोर्स अप्लाई किया जिसकी वजह से वो विसल ऊपर मूव हो गया। एंड द whistling of a pressure cooker is an example कि gases exerts pressure on the walls of the container. लिक्विड्स भी वॉल्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं बट ये प्रेशर कम होता है, और solids do not create any pressure on the walls of the container in which they are kept. तो solids दूसरे के ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं करने की कोशिश करते, प्रेशर लिक्विड्स क्रिएट करते हैं एंड गैसेस क्रिएट करते हैं, बट गैसेस में ये प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। इट इज मैक्सिमम इन केस ऑफ गैसेस। So gases exerts a pressure on the walls of the container, that is maximum because they have maximum kinetic energy, और इस kinetic energy की वजह से ही, high kinetic energy की वजह से ही आप देखना कि LPG सिलेंडर जो होते हैं उनके walls हमेशा बहुत thick होते हैं। They are very heavy, they are very strong, क्योंकि अगर वो strong नहीं हुए और अगर गैस ने pressure apply ज़्यादा कर दिया, so it could lead to a disaster. You can imagine that. Okay? So that high is the kinetic energy of the particles in the gaseous state. Next is attractive force between the particles. क्या particles एक दूसरे को attract कर रहे हैं? Yes. Solid state में ये attraction सबसे ज्यादा है, इसलिए particles एक दूसरे के पास रहते हैं। Liquid state में थोड़ा कम है, और gaseous state में एक दूसरे के ऊपर कोई force apply नहीं कर रहा। गैसेस के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर भागते रहते हैं, अच्छे से घूमना चाहते हैं, और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। नेक्स्ट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन। अगर हम सॉलिड को सॉलिड में डिफ्यूज होना की कोशिश करें तो एक सॉलिड दूसरे में सॉलिड में डिफ्यूज नहीं होता, मीन्स दे हैव वेरी लो और एक्चुअली ऑलमोस्ट नो डिफ्यूजन ऑफ अ सॉलिड इनटू अनदर सॉलिड। बट अगर किसी सॉलिड को लिक्विड में डिफ्यूज करने की कोशिश करें देन इट इज पॉसिबल। अगर हम कोई सॉलिड पीस है लाइक कुछ कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं, अगर उनको हम पानी में डालेंगे देन देयर विल बी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर मतलब डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर मतलब एक तरह का मैटर दूसरे तरह के मैटर में। फॉर एग्जाम्पल वी हैव शोन दैट पोटेशियम परमैंगनेट और वाटर, ये दो अलग टाइप हैं मैटर के, और इन दोनों का डिफ्यूजन हमने देखा है थ्रू एन एक्टिविटी। तो जब एक मैटर दूसरे मैटर में इंटरमिक्स हो पाए अपने आप विदाउट अ हेल्प, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। तो सॉलिड्स में बहुत कम या ऑलमोस्ट निल डिफ्यूजन शो करते हैं। लिक्विड्स शो बेटर रेट ऑफ डिफ्यूजन। लिक्विड्स में डिफ्यूज हो जाते हैं, सॉलिड्स लिक्विड्स में डिफ्यूज हो जाते हैं, गैसेस का भी डिफ्यूजन होता है लिक्विड्स में।
And this diffusion of gases into liquids is very important, especially when we talk about aquatic life. एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, और ये गैसेस डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही वाटर में मिक्स्ड हैं. एक्वेटिक प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, एक्वेटिक एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, और ये दोनों गैसेस डिफ्यूजन प्रोसेस से ही वाटर के अंदर मिक्स्ड हैं. So this diffusion of gases into liquids is also very, very important. Now, if you talk about diffusion of gases into another gas, that is very fast. Gases एक दूसरे में बहुत ही fast diffusion हो जाता है. You know the example of अगरबत्ती और LPG cylinder अगर leak हो जाता है तो उसकी smell पूरे घर में फैल जाती है. These are the examples that show that the diffusion in case of gases is very, very high. It's about density. डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. एक फिक्स्ड वॉल्यूम में अगर एक फिक्स वॉल्यूम बना दिया हमने तो उस फिक्स वॉल्यूम में कितना मास ऑक्यूपाई होगा, कितना मास होगा, तो दैट विड बी मैक्सिमम फॉर सॉलिड्स. तो अगर मैंने इतना स्पेस क्रिएट कर दिया और इसमें मैंने अलग अलग इसी स्पेस में मैंने अलग अलग चीजों को फिल करने की कोशिश करी, वंस अ सॉलिड, देन अ लिक्विड एंड देन अ गैस, तो यूजुअली सॉलिड्स की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है. लिक्विड्स की डेंसिटी सॉलिड्स के कंपैरिजन में कम होती है और गैसेस की डेंसिटी सबसे कम होती है, मिनिमम डेंसिटी होती है. दैट इज यूजुअल बट दैट इज नॉट फिक्स्ड, बिकॉज अगर हम एक सॉलिड की बात करें तो वो सॉलिड अपने सॉलिड स्टेट में फ्लोट करता है अपने लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर. आई होप यू हैव गेस्ड दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर. So the next question is, why ice floats on water? Solids की density तो ज़्यादा होनी चाहिए liquids के comparison में, और ice and water both are the different states of matter of same water only. तो क्यों water has more density as compared to ice? The reason is, ice जब form होती है तो उसके बीच में air molecules trap हो जाते हैं और इसलिए वो ज्यादा स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है. एंड दैट इज व्हाई डेंसिटी ऑफ आइस इवन इन द सॉलिड स्टेट इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर. इसे कभी एक्सपेरिमेंटली ट्राई करना आज ही. एक बॉटल लेना, लाइक कोई भी डिस्पोजेबल बॉटल, बिस्लरी और सम एनी अदर डिस्पोजेबल बॉटल, फिल इट अप टू द ब्रिम विथ वाटर. पूरा पानी से भर देना, अब फुल पानी से भर देना है आपको. ओके, एंड जस्ट ट्राई टू प्लेस इट ऑन अ टेबल. आप देखोगे वो टेबल पे इजीली आप सीधा उसको रख सकते हो. अब उसको आप फ्रीजर में रख देना एंड लेट इट फ्रीज नाइसली. पूरी तरह से अच्छे से आइस बनने देना, है ना. आज रखना एंड जस्ट चेक इट टुमारो. यू विल फाइंड दैट अगले दिन जब आप उसमें पूरी आइस फॉर्म हो गई है तो वो बॉटल का लोअर पार्ट थोड़ा सा, आई विल शो यू, ये हमारी बॉटल थी, इट वॉज लाइक दिस. बट जब हमने उसको फ्रीजर में रखा, उसमें आइस बनने दी, तो वो आइस बनने के बाद उसका जो बेस है वो थोड़ा सा बल्ज आउट हो जाएगा, क्योंकि जब आइस बनती है तो आइस ऑक्यूपाइज मोर स्पेस. व्हाई इट ऑक्यूपाइज मोर स्पेस? क्योंकि आइस के फॉर्मेशन के टाइम पर कुछ एयर ट्रैप हो जाती है उस आइस के मॉलिक्यूल्स के बीच में. आइस के पार्टिकल्स के बीच में क्या ट्रैप हो गई है? एयर. और इस ट्रैप्ड एयर की वजह से ही हमारी आइस वाटर के ऊपर फ्लोट कर पाती है. एंड बिकॉज ऑफ दिस एयर बबल्स ओनली जो आइस है उसकी डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में कम होती है. एंड दैट इज व्हाई आवर आइस फ्लोट्स ऑन वाटर. Okay, so that bulged out bottle will be there, and now try to keep that bottle on that same table. You will find कि हमारी बॉटल अब अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही. It is not able to stand straight because we are not able, because its lower portion is bulged outwards. Bulging की वजह से वो अच्छे से you can't make it stand on the table. Okay, so that is about density. Next is the effect of force or pressure.
अगर हम सॉलिड्स के ऊपर प्रेशर या फोर्स अप्लाई करते हैं तो सॉलिड्स अपना मैक्सिमम ट्राई करते हैं कि वो अपना शेप चेंज नहीं करें। बट अगर ये फोर्स हमने बहुत ज्यादा लगाया, कितना ज्यादा, उनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे ज्यादा अगर हमने फोर्स अप्लाई किया तो या तो वो सॉलिड अपना शेप चेंज कर लेगा या फिर वो ब्रेक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव अ चॉक, मैं उस पर फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तो वो चॉक पीस ब्रेक हो जाएगा। तो सॉलिड्स या तो अपना शेप चेंज करेंगे अगर हम उनके ऊपर बहुत फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो, या फिर वो that will break under the effect of that force. ओके अगर फिक्स्ड वॉल्यूम में रखते हुए हमने लिक्विड्स के ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो उसमें उस फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। लिक्विड्स लिक्विड स्टेट में ही रहेंगे, वो उनका स्टेट ऑफ मैटर चेंज नहीं करेंगे। हाँ, लिक्विड्स हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो, तो अगर फोर्स अप्लाई किया तो वो एक जगह से दूसरी जगह डेफिनेटली मूव कर सकते हैं, दे हैव फ्लूइडिटी, बट फोर्स के अंडर में अपना वॉल्यूम चेंज नहीं करेंगे। बट अगर हम गैसेस पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो गैसेस का स्टेट ऑफ मैटर भी चेंज हो सकता है। अगर हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का ही अगर एग्जाम्पल लें तो वो गैस है, बट व्हाई इट इज कॉल्ड लिक्विफाइड, बिकॉज जब हम उस पर प्रेशर अप्लाई करके उसे गैस सिलेंडर के अंदर फिल करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाती है। एंड दिस कन्वर्जन ऑफ अ गैस टू अ लिक्विड स्टेट इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन दैट गैस। गैस पे बहुत ज्यादा फोर्स या प्रेशर अप्लाई करेंगे तो पार्टिकल्स एक दूसरे के पास में आ जाएंगे, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो पहले वो दूर दूर थे तो वो गैसियस स्टेट में थे, पास आ जाएंगे तो दैट कैन टर्न इनटू अ लिक्विड, एंड फॉर सम सब्सटेंसेस दे कैन इवन टर्न इनटू अ सॉलिड। वन सच एग्जाम्पल इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ऊपर अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड स्टेट में नहीं आएगी। दैट कार्बन डाइऑक्साइड will be getting turned into a solid state, and that is how the gases can change their state of matter because of the effect of force or pressure applied on them. Okay, so this was a comparative study of the states of matter, solids, liquids and gases, जिसमें हमने सारी प्रॉपर्टीज को भी समझा है और उनका तीनों का कंपैरेटिव स्टडी भी किया है। इसके अलावा अगर हम रबर बैंड की बात करें तो रबर बैंड, आई टोल्ड यू दैट सॉलिड्स हैव अ फिक्स शेप फिक्स होता है, बट रबर बैंड को हम स्ट्रेच कर सकते हैं। तो रबर बैंड एक सॉलिड है या नहीं है? यस, इट्स अ सॉलिड, बट अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो अपना शेप चेंज कर पाता है बिकॉज इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। और जब हम फोर्स अप्लाई करना बंद कर देते हैं तो इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप बिकॉज द सॉलिड्स ट्राई टू हैव देयर ओन शेप, सॉलिड्स ट्राई टू मेंटेन देयर शेप। अगर ये फोर्स हमने बहुत ज्यादा अप्लाई कर दिया तो वो रबर बैंड ब्रेक भी हो सकता है। सेकेंड थिंग, स्पंज, हमने कहा सॉलिड्स में दे आर नॉट हैविंग कंप्रेसिबिलिटी इज ऑलमोस्ट निल। तो स्पंज को तो हम कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, और वो अगर इतनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा था दबाने से पहले तो दबाने के बाद वो इतनी सी जगह में आ जाता है। इज इट अ सॉलिड और नॉट? स्पंज इज ऑल्सो अ सॉलिड, बट हम उसको कंप्रेस कर पाते हैं बिकॉज इट हैज एयर स्पेसेस इन दैट, और इन एयर स्पेसेस की वजह से ही जब हम उसको कंप्रेस करते हैं तो वो एयर स्पेसेस में से एयर बाहर आ जाती है and we are able to compress that sponge to a smaller space. Okay, isn't that interesting? One more such example. I told you that solids have a fixed shape, but अगर हम sugar या salt को किसी box में fill करते हैं तो depending on the shape of the container they take their shape. तो क्या वो solid है या नहीं है? Yes, they are also solids because अगर आप इंडिविजुअल क्रिस्टल को देखें
individual crystal of sugar or individual crystal of salt. They try to maintain their shape. But as a whole, अगर हम salt के पैकेट की बात करें या sugar पैकेट की बात करें, तो वो कंटेनर का शेप इसलिए ले लेते हैं क्योंकि वो क्रिस्टल्स बहुत छोटे छोटे साइज के हैं. But individual crystals always try to have their fixed shape, and that is why they are also solids only, and they also have a fixed shape only. Now I'll shift to side so that you can take a screenshot if you want. Shift to side. So that's all for this session today. If you like the video, please do share it with your friends. So that's all for today. Good day, everyone.